سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید کنٹرول لائن پر جوانوں کے ساتھ منائی۔ آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول پر فرنٹ لائن پر معمول جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، امن، قومی سلامتی اور استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ سپاہی کی عید اس کا یہ فخر ہے کہ وہ تہوار پہ بھی اپنی فیملی سے دور دفاع وطن کے مقدس فریضے میں مصروف ہے۔ وطن کے محافظوں کی پہلی فیملی پاکستانی قوم ہے اور پیچھے گھروں میں موجود فیملی بعد میں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا فیصلہ قوم پر احسان نہیں، ہم ایک ہیں اور یہ قدم ہر قسم کے حالات میں یکجہتی کے عزم کا اعادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کٹوتی کو خطرات کے خلاف دفاعی صلاحیت پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ بجٹ کٹوتی سپاہیوں کے معیار زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تنخواہ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ بھی صرف آفیسرز کا ہے، جوانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کٹوتی کو دفاعی صلاحیت اور جوانوں کے معیار زندگی پر اثر انداز کیے بغیر آنے والے مالی سال میں دیگر امور میں ایڈجسٹمنٹ سے پورا کیا جائے گا۔ کمانڈر راولپنڈی کور لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پاک فوج کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ پاک فوج نے دفاعی اخراجات مؤخر کرنے، فوج کے راشن، سفری اخراجات اور انتظامی اخراجات میں کمی کا اعلان کر دیا۔ چیلنجز کے باوجود اس فیصلے سے سول ملٹری تعلقات کی ایک نادر مثال قائم ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاک فوج نے رضاکارانہ طور پر دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ حقیقی قومی ادارے کی حب الوطنی کی عکاس اور احسن اقدام ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں ایک سال کی رضاکارانہ کٹوتی کے اثرات دفاع اور سیکیورٹی پر نہیں پڑیں گے۔ ہر قسم کے خطرے کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت برقرار رکھی جائے گی۔ مسلح افواج کی تینوں سروسز بجٹ کٹوتی کے اثرات مناسب طریقے سے اندرونی طور پر مینج کریں گی۔ قبائلی اضلاع اور بلوچستان کی ترقی میں حصہ ڈالنا بہت اہم تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ پاک فوج کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اپنے دفاعی اخراجات میں کٹوتی کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے دفاعی اخراجات میں کٹوتی ہمارے ملک کی نازک مالی صورتحال کی وجہ سے کی۔ وہ پاک فوج کے اس بے مثال رضاکارانہ اقدام کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فوج نے کئی سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود دفاعی اخراجات میں کٹوتی کی۔ یہ فیصلہ حقیقی قومی ادارے کی حب الوطنی کی عکاسی اور احسن اقدام ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اس رقم کو ضم شدہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان کی ترقی پر خرچ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے راشن، سفری الاؤنس اور انتظامی اخراجات میں کمی کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے بعد پاک افواج کے ترجمان کا بیان بھی سامنے آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ دفاعی بجٹ میں ایک سال کی رضاکارانہ کٹوتی کے اثرات دفاع اور سیکیورٹی پر نہیں پڑیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہر قسم کے خطرے کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت برقرار رکھی جائے گی۔ مسلح فوج کی تینوں سروسز بجٹ کٹوتی کے اثرات مناسب طریقے سے اندرونی طور پر مینج کریں گی۔ قبائلی اضلاع اور بلوچستان کی ترقی میں حصہ ڈالنا بہت اہم تھا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ وہ بجٹ میں اضافہ نہ کرنے پر مسلح فوج کی قیادت کو سراہتے ہیں۔ اس اقدام سے اخراجات، مالی خسارے پر قابو پانے اور معاشی استحکام کے حصول میں مدد ملے گی۔ قومی اہداف کے حصول میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ کرنے کی عمدہ مثال قائم کر دی۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کے فیصلے سے ملک کی معیشت پر فوری اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے دوسرے قومی اداروں کو بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ ان اقدامات سے مالی خسارے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی استحکام حاصل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ہم سب کو مل کر قومی اہداف پورا کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی فیک میڈیا پاکستان کے دفاعی بجٹ جیسے اندرونی معاملے کو گھما پھرا کر پیش کرنے میں مصروف ہے۔ بھارت یہ نہ بھولے کہ 27 فروری کو یہی فوج تھی جس سے اس کا سامنا ہوا۔ پاکستانی فوج میں جواب دینے کی مکمل اور بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ پاک فوج کی طاقت اس کا بجٹ نہیں بلکہ عوام کا فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ میں قائم مسجد میں نماز عید ادا کی۔ جڑواں شہروں کا نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، ارکان پارلیمنٹ، سفراء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید الفطر ادا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی رہائش گاہ میں قائم مسجد میں نماز عید ادا کی۔
बनी गाला सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन और सिक्योरिटी स्टाफ ने भी वजीर आजम के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद वजीर आजम ने लोगों से ईद भी मिली। मुल्क भर में ईद उल फितर रिवायती और मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हैं। सब चेहरों पर मुस्कुराहट, लहजे में अपनायत और बातों में मिठास भरी हुई है। मुल्क भर में हजारों की तादाद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जहां नमाज के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बाग-ए-जिना में हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मेयर कराची वसीम अख्तर और MKM के रहनुमा आमिर खान समेत मुख्तलिफ सियासी और सरकारी शख्सियात ने बाग-ए-जिना में ईद की नमाज अदा की। मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ, जहाँ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में नमाज अदा की और यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। उस्मान बुज़दार बाद अज़ां SOS विलेज और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गए और ज़ेरे किफ़ालत बच्चों और बच्चियों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए। कोयटा में भी जामा मसाजिद और ईदगाहों समेत कई मुकामात पर नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात हुए। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई, वज़ीर आला जाम कमाल और चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने गवर्नर हाउस में नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आला ने पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। पेशावर में सूबाई हुकूमत के ऐलान के मुताबिक मंगल को ईद मनाई गई थी, ताहम आज भी कई जगहों पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। पेशावर में ईद का बड़ा इज्तिमा सुनहरी मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जबकि इसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद अदा की गई। और मीठी ईद का जिक्र हो और पकवानों का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। जिंदा दिलाने लाहौर ने ईद का आगाज किया हलवा पूरी के नाश्ते से, जबकि दोपहर में मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ो की गई। इससे मुतल्लिक रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौरियों ने रमजान के फौरी बाद हलवा पूरी की दुकानों का रुख किया। खरीदारों की लंबी कितारें, खाने वालों का बेपनाह रश। वालिदैन अपने बच्चों के हमरा गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाते दिखाई दिए। हम सब फैमिली के साथ आए हैं, खाना पूड़ियाँ खा रहे हैं, नाश्ता करने आया है दादा दादी के साथ। मेहमानों की आमद शुरू हुई तो खवातीन ने किचन संभाल लिए, मज़े मज़े के पकवान तैयार किए और फिर चिकन जलफरेजी, जिंजर गोश्त, कोफ्ता और चावल चरखारे ले लेकर खूब खाए। सबका कहना था ईद प्यार मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का दर्स देती है। मैंने थोड़ा सा हटके मेन्यू बनाया है, जलफरेजी बना लिया है, जिंजर बना लिया है और मटन कढ़ाई बना ली है। आज तो स्पेशली ईद का दिन है, इसमें तो और कोई चॉइस ही नहीं। गर्मी ने बाहर तो निकलने नहीं देना। रमज़ान के इतने लंबे गैप के बाद आप खाना वगैरह खा रहे होते हो इकट्ठा होके, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय कर। हर कोई अपने अपने अंदाज में मीठे त्यौहार को जोशो खरोश से मना रहा है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ में फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब सुबह शीर खुरमा उड़ाया, दोपहर में बिरयानी, रात में फूड स्ट्रीट के मजे। पेशावर लिए चलते हैं आपको, जहां शहरियों की बड़ी तादाद नमक मंडी पहुंच रही है। तफसीलात आफ्ताब अहमद से। जी, इस वक्त पेशावर की नमक मंडी में हर सू भीनी भीनी गोश्त की खुशबुएं चार सू फैली हुई है। ईद उल फितर के मौके पे एक मरतबा फिर पेशावर की जो नमक मंडी है, यहाँ की रौनकें बहाल हो गई हैं और दूर दूर से लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो नमकीन गोश्त होता है, लेकिन मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के जो गोश्त है वो यहाँ पे पकाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। स्पेशली जो दुम्बे का गोश्त है वो यहाँ का मशहूर है और जिसको सिर्फ कोयलों पे बारबेक्यू किया जाता है। इसके साथ साथ दमपोख बनाया जाता है, रोश बनाया जाता है और कढ़ाई गोश्त भी यहाँ का इंतहाई मशहूर है। नमक मंडी में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा टिक्कों की दुकानें हैं और हर दुकान पे खूब रश देखने को मिल रहा है। कराची में ईद के पहले दिन सूरज ने गर्मी की ईदी बांटी। शाम ढले शहरियों ने ख्वाबों का मजा उड़ाने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे खावर खान। कराची वाले जो है सुबह से जो बेताशा गर्मी पड़ रही थी, मगरिब के बाद जो उन्होंने कराची के मुख्तलिफ मकामात और रेस्टोरेंट्स का रुख किया है। और दिन में गर्मी होती है, शाम को एंजॉय के लिए निकले, थोड़ी ठंडी हवा लग जाती है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, जाहिर सी बात है, इसलिए खुली हवा में निकले ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो हम लोग, हवा लगे। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा कराची में पड़ रही है, तो सब बाहर ज़रूर निकले हैं और सबका ये कहना है कि एक अच्छा वक्त जो है वो अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ गुजार सकें। जी,
बहुत शुक्रिया खावर। कराची के बाद गुजरांवाला को रुख करेंगे, जहां शहरी ईद के पहले दिन सब शीर खुरमा और सवैयों से लुत्फानंदोज हो चुके, तवाज़ो कर चुके और यहां का मशहूर बारबेक्यू खाकर अब अपनी ईद का मजा दोबाला कर रहे हैं। ईद का पहला रोज़ है तो सुबह से जो गुजरांवाला के शहरी हैं वो शीर खुरमा और मीठी सवैयां खा रहे हैं। तो अब रात के वक्त मुंह का जायका तब्दील करने के लिए यहाँ के जो मशहूर रेस्टोरेंट है वहाँ का रुख किया गया है। साथ में मटन नली खाकर जो है अपनी ईद का मजा दुबाला किया जा रहा है। रश काफी ज्यादा है। किसकी फरमाइश पे आए हैं? बेगम की। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर अपने डिनर एंजॉय कर रही हैं और अपनी ईद के पहले दिन का मजा दुबाला कर रही हैं। कोट लखपत जेल लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया गया। सुपरिटेंडेंट जेल की दरख्वास्त पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स और नर्सेज की टीम जेल गई और नवाज शरीफ का मुकम्मल चेकअप किया। कार्डियोलॉजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर और शुगर समेत मामूल का चेकअप किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को एंजाइना की तकलीफ पर सुपरिटेंडेंट जेल ने डॉक्टर्स को चेकअप के लिए बुलाया था। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का एक बयान में कहना है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से उनकी सुपरिटेंडेंट जेल से बात हुई है। सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि माजी की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं, ऑपोजिशन अवाम और मजदूरों का जुलूस क्रैश करवाएगी। गुजरात में नमाज ईद अदा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी शुजात का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को कामयाब करवाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि ऑपोजिशन लीडर मुल्क से भाग चुके, उनके लिए इश्तिहार देना होगा। शहबाज शरीफ का मुल्क में न होना नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी गैर मुंतखब चांद का शिकवा कर रहे हैं। किस तरीके से कौन से जुलूस रहे हैं? अगर लेबर वाले जुलूस निकालेंगे तो आगे जा खड़े हो जाएंगे, तो ये हमारा जुलूस है। अगर वो जुलूस निकालेगा तो सामने खड़े हो जाएंगे, हमारा जुलूस है। इसलिए लोग अपने मसाइल से बाहर आएंगे। अपोजिशन लीडर है सारी असम्बली का, वो ही भगौड़ा है। तो इस सूरत हाल में ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, ख़ास तौर पे नून लीग के लिए कि जिसका लीडर ही भागा हुआ है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.